ایک دن خلیفہ ہارون رشید کسی فکرمند مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی۔ انہیں کوئی بات اور کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ فکرمند نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر انہوں نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا۔ جعفر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنا حال اسے سنایا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میری حالت سنبھل جائے۔ یہ سن کر جعفر کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، حضور اس کا تو مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے، کیوں نہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں عام رعایا سادہ زندگی گزارتی ہے۔ وہ لوگ کبھی فکر مند اور مایوس نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے وہاں جا کر آپ کی طبیعت سنبھل جائے۔ خلیفہ نے جعفر کی اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر خلیفہ نے اپنے حبشی غلام مسرور کو بلا بھیجا۔ مسرور بھی فوراً حاضر ہو گیا۔ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر باہر نکل گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ تینوں ادھر ادھر بھٹکتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گیت بہت پیارا تھا اور گانے والے کی آواز بہت میٹھی اور سریلی تھی۔ گیت کے ایک ایک لفظ سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ رو رو کر ایسے نہ مرو، کھاؤ پیو اور عیش کرو، غم کو پاس نہ آنے دو، خوشیوں سے دامن بھر لو، ہر ایک سے ہنس ہنس کر بولو، ہر ایک کو خوش کر دو، جو ہر دم خوش رہتے ہیں جینا اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس طرف کو چل دیے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے کے اوپر ایک مکان بنایا گیا ہے۔ ٹیلا بہت اونچا نہیں تھا۔ وہ جلد ہی اس کے اوپر پہنچ گئے۔ چھوٹا سا مکان تھا۔ مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس مکان کے اندر ایک آدمی ہاتھوں میں کانچ کے ٹکڑے لیے انہیں بجا بجا کر لہک لہک کر گا رہا تھا۔ خلیفہ نے دیکھ کر کہا، یقیناً میرے دکھ کا علاج یہیں پر ہے۔ مسرور تم اس آدمی کو آواز دو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے۔ مسرور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے کھڑکی کے اندر سے سر نکال کر فوراً پوچھا، کون بدماش ہے جس نے میرے گانے میں دخل دی اور کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خلیفہ نے اپنی ہنسی پر قابو کیا اور کہا، ہم لوگ مسافر ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات یا پھر کچھ دن یہاں پر گزار لیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مکان مالک سامنے کھڑا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، تم لوگ تو تاجر نظر نہیں آتے، خیر تم اندر آ جاؤ، اور ہاں مجھ سے کھانے کے لیے کچھ نہ مانگنا اور نہ ہی میں ایک قطرہ اپنی شراب کا تمہیں دوں گا، اور ایک بات کا مجھ سے اور وعدہ کرو کہ جو کچھ بھی تم یہاں پر دیکھو گے وہ باہر جا کر کسی کو نہیں بتاؤ گے اور میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہو گے، نہ مجھ سے کچھ اس کے بارے میں پوچھو گے۔ اس کے بعد اس آدمی نے جعفر اور مسرور کا خوب مذاق اڑایا اور انہیں برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بڑا عجیب سا تھا وہ آدمی۔ خلیفہ، جعفر اور مسرور اطمینان سے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک دسترخوان کے اوپر بھنا ہوا گوشت، مختلف قسم کے پھل اور شراب کی بوتل رکھی تھی۔ صبح ہونے کو تھی اور مکان مالک سب چیزوں کو صاف کر چکا تھا۔ شراب کی بوتل بھی خالی تھی۔ آخر خلیفہ نے ہمت کر کے پوچھا، جناب آپ ہیں کون؟ آپ تو اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں اور عمدہ قسم کی شراب پیتے ہیں۔ مکان مالک نے گھورتے ہوئے خلیفہ کو دیکھا اور کہا، مجھ سے کوئی سوال مت پوچھو۔ پھر ساتھ ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ نرم لہجے میں بولا، میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں ایک لوہار ہوں اور میرا نام قاسم ہے۔ میں تقریباً 20 سالوں سے بغداد میں لوہار کا کام کر رہا ہوں اور روزانہ کے تقریباً 5-7 درہم کما لیتا ہوں، اور کام کرنے کے بعد جب روزانہ گھر جانے لگتا ہوں تو میں سارے پیسے خرچ کر کے اچھے اچھے کھانے اور ایک شراب کی بوتل خرید لیتا ہوں، اور جب میں گھر پہنچتا ہوں پہلے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اس کے بعد جھوم جھوم کر گاتا ہوں، پھر میں آرام کرتا ہوں اور پھر اٹھ کر نہا دھو کر میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی خرید کر لاتا ہوں وہ سب کھا جاتا ہوں، کیونکہ محنت بھی تو اتنی ہی کرتا ہوں۔ کھانے کے بعد میں شراب کی بوتل پی جاتا ہوں اور پھر سکون سے سوتا ہوں، اور پھر صبح ہی میری آنکھ کھلتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی میں اپنے کام کے لیے شہر چلا جاتا ہوں۔ میں دن بھر کام کرتا ہوں اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، اور ہاں میں جو شراب پیتا ہوں اس میں نشہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ طاقتور اور آرام دہ ہوتی ہے، اس سے مجھے نیند آتی ہے۔ خلیفہ نے یہ سنا تو خلیفہ کہنے لگا، اگر تمہیں کل کام نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سن کر وہ آدمی برا سا منہ بنا کر کہنے لگا، کیسے کالی زبان کے آدمی ہو تم؟ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کی خبر پورے بغداد میں پھیل جائے گی۔ خلیفہ نے کہا، ہم تو غیر ملکی مسافر ہیں، تم ہمیں کیسے ڈھونڈ نکالو گے؟ صبح ہوتے ہی خلیفہ اور اس کے ساتھی اس گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ آدمی خلیفہ ہارون رشید اور اس کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا رہا اور چیختا چلاتا رہا، اور خلیفہ ہارون رشید اس کے اس برتاؤ سے بہت خوش ہوئے۔ اب خلیفہ نے جان بوجھ کر اس آدمی کو تنگ کرنے کی ٹھان لی۔ پھر خلیفہ نے پورے بغداد میں اعلان کروا دیا کہ آج سے 3 روز تک تمام لوہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ یہ خلیفہ کا حکم ہے اور جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قاسم شہر میں پہنچا اور اس نے یہ خبر سنی تو اس کا دھیان فوراً اس مسافر آدمی کی طرف گیا جس نے اس کے سامنے کام نہ ملنے کی بات کہی تھی، لیکن وہ اسے کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ قاسم پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا۔
वो उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर बहुत सारे हमाम खाने बने हुए थे। लोग वहाँ जाकर गुस्ल करते और शाम को जिस्म की मालिश करवाते और इस तरह से हमाम वालों की अच्छी खासी रोजी बन जाती थी। अचानक किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई कासिम, इतने परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? कासिम ने पीछे मुड़कर देखा तो हमाम खाने के करीब उसका पुराना दोस्त खालिद खड़ा हुआ था और खालिद वहीं पर काम करता था। कासिम ने खालिद को अपना सारा हाल सुनाया। खालिद कहने लगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, 3 दिन तक तुम मेरे साथ यहीं पर काम करो। कासिम राजी हो गया और दिन भर काम करने के बाद शाम को उसे 5 दिरहम मिल गए और वो हस्बे मामूल सारा सामान खरीद कर अपने मकान में पहुंच गया। उसने सोचा कि हमाम खाने में काम करना कितना आसान है, अब मैं लोहार का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। रात हो चुकी थी और आसमान पर चांद चमक रहा था। कासिम के मकान की खिड़की खुली हुई थी और वो उसी तरह से झूम झूम कर गा रहा था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही 3 ताजिर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर कासिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कासिम उन्हें देखकर कहने लगा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अंदर दाखिल होने के बाद खलीफा इसी सोच में पड़ गया कि लोहारों की दुकान बंद हो जाने के बाद इसके पास रकम कहाँ से आई। अभी खलीफा कुछ कहने ही वाले थे कि कासिम ने इशारा करते हुए उसे रोक दिया और कहा, ज़रा ठहरो, पहले मुझे खा पी लेने दो, उसके बाद कुछ सवाल करना। दस्तरखान सजा हुआ था और आज दस्तरखान के ऊपर पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, तीतर बटेरे और तरह तरह के फल फ्रूट सजे हुए थे। कासिम खाने पर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाने के बाद उसने शराब की बोतल भी खाली कर दी। फिर कासिम का चेहरा खिलने लगा। कासिम ने अपने तीनों मेहमानों को खूब जी भरकर गालियाँ दी और उन्हें बुरा भला कहा। फिर खलीफा से मुखातिब होकर कहा, तुम तो बिल्कुल काली जुबान वाले हो, तुमने जैसा कहा था आज वही हो गया। कासिम काफी देर तक कुछ ना कुछ कहता रहा और जब वो कहकर थक गया और वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ तो खलीफा ने उससे पूछा, लोहारों की दुकान 3 दिन तक बंद है, फिर तुम्हारे पास 5 दिरहम कहाँ से आ गए? फिर कासिम एक तंजिया सी हंसी के साथ बोला, आज मैंने एक हमाम में काम किया और शाम तक मुझे 5 दिरहम मिल गए। कासिम ने सच कह डाला। फिर खलीफा ने कहा कि अगर खलीफा हारून रशीद ने हमाम खाने भी बंद करवा दिए तो? यह सुनकर कासिम का गुस्से से बुरा हाल हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम तीनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम तीनों बहुत खुश हो जाओगे। चलो अब निकल जाओ यहाँ से। कासिम बहुत गुस्से में था। उन तीनों ने बड़ी मुश्किल के साथ उसे समझा बुझाकर वहाँ पर रात गुजारी और फिर सुबह होने से थोड़ी देर पहले तीनों वहाँ से निकलकर महल पहुँच गए। महल पहुँचकर खलीफा हारून रशीद ने कासिम को सज़ा देने की फिर ठान ली। उन्होंने फिर हुक्म दिया कि बगदाद में 3 दिनों तक हमाम खाने बंद रहेंगे। बगदाद में जगह जगह पर यही बातें हो रही थी। कासिम भी शहर में पहुंच चुका था। उसे इस बात की बहुत फिक्र हो रही थी कि क्यों रात को उसने मुसाफिरों को हमाम खाने की बात बता दी। आखिर वही हुआ जो उस काली जुबान वाले मुसाफिर ने कहा था, लेकिन अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो चुका। फिर कासिम ने सोचा कि आज कोई और काम ढूंढना चाहिए ताकि आज भी 5 दिरहम का इंतज़ाम हो जाए। वो दर दर भटकने लगा। शाम तक उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसकी नज़र घर में पड़े हुए एक लंबे से कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। कपड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का था। कासिम ने फ़ौरन कपड़े को उठा लिया और उसे बाजार में बेचने के लिए सोचा। उसे यकीन था कि यह 5 दिरहम का बिक जाएगा। वो सफ़ेद लंबे कपड़े को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने मदरसे के एक हमाम में जाकर गुस्ल किया और उस कपड़े को भी धो लिया। उसने कपड़ा धोने के बाद कपड़े को सुखाने के लिए अपने कंधे पर डाल लिया और वो बाजार में उस दुकान की तरफ चल पड़ा जहाँ से उसे उस कपड़े की अच्छी कीमत मिल सकती थी। अभी कासिम एक दुकान के सामने खड़ा हुआ था कि एक औरत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई उसके करीब आई और कहने लगी, आप तो काजी की अदालत के वकील हैं, मेहरबानी करके मेरा मुकदमा काजी की अदालत में पेश कीजिए। इत्तफाक की बात, जो कपड़ा कासिम ने अपने सर पर लपेट रखा था वहाँ काजी की अदालत के वकील उसी तरह का कपड़ा अपने सर पर बांधा करते थे। गलती से उस औरत ने लोहार को वकील समझ लिया था और लोहार भी समझ गया था कि ये औरत मुझे वकील समझ रही है, इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने वकीलों वाले अंदाज में कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो औरत कहने लगी, मेरा शौहर एक बढ़ई है, उसने मुझसे शादी करते वक्त कहा था कि मैं हर रोज़ तुम्हें 5 दिरहम दिया करूँगा, लेकिन वो मुझे हर रोज़ 1 दिरहम देता है। मैं परेशान हो गई हूँ कि कैसे घर का खर्च पूरा करूं। कासिम कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा शोहर, मैं उसे ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि हर रोज़ वो तुम्हें 5 दिरहम देने लगेगा। औरत ने कहा कि मेरे शिकायतनामे पर नायब काजी के दस्तखत ले लीजिए। कासिम कहने लगा कि मैं ही नायब काजी हूँ। ये कहकर उसने औरत के शिकायतनामे पर दस्तखत किए और औरत से पूछा, तुम्हारे शोहर की दुकान कहाँ है? औरत कहने लगी कि ये गली जो दाएं तरफ मुड़ती है उसके दूसरे कोने पर उसकी दुकान है। कासिम कहने लगा, मैं अभी इसी वक्त उसे पकड़ कर लाता हूँ। औरत ने यह सुना तो वो खुश हो गई और उसने 2 दिरहम कासिम को दिए।
कासिम दिरहम लेकर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गया। गली के दाएं जाने मुड़ते ही उसे बढ़ई अपनी दुकान में काम करता हुआ दिखाई दिया। कासिम जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को पकड़कर अपने कंधे पर लाद कर दूसरी गली की जाने मुड़ गया। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा और कहने लगा, अरे भाई कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कासिम ने कहा, मैं तुम्हें काजी की अदालत में ले जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को वादे के मुताबिक 5 दिरहम रोजाना क्यों नहीं देते? क्या तुम मुझे जानते हो? मैं नायब काजी हूँ। वो आदमी चिल्ला कर बोला, मुझ पर रहम करो और मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि हर रोज़ अपनी बीवी को 5 दिरहम दिया करूँगा और उससे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। कासिम ने उसे अपने कंधे से उतारते हुए कहा, और मेरा मुआवजा कौन देगा? बढ़ई बोला, मेरे पास इस वक्त तो 3 दिरहम हैं, यही ले लो। कासिम ने कहा, ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं, वरना तुम्हें सीधा कैद खाने में भिजवा दूंगा। अब यहाँ से जाओ और अपना काम करो। 5 दिरहम पाकर कासिम ने हर रोज की तरह सारा सामान खरीदा, शराब की बोतल खरीदी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इतने सारे मामलात तय करते हुए उसे शाम हो गई थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था और कह रहा था, मैं भी देखता हूँ कि खलीफा कौन कौन से काम बंद करवाता है। मैं उन ताजरों को बता दूंगा कि मैं भी किस मिट्टी का बना हूँ। मुझे कल की फिक्र नहीं रहती, मैं बस आज का सोचता हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इसके बाद कासिम ने आराम किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद कासिम ने वही कांच के टुकड़े लिए और हर रोज की तरह अपनी मीठी और सुरीली आवाज में गाने लगा। वो हर रोज नए नए गीत गाता था। आज वो कह रहा था, कितनी हसीन ये रात है, हर बात में नई बात है। रब ने मुझ पर करम किया, खुशियों से मेरे दामन को भर दिया। हंसता हूँ मैं, गाता हूँ मैं, जिस जगह भी जाता हूँ मैं। गम से मैं कोसों दूर हूँ, मसरूर हूँ, बस मसरूर हूँ। गाते गाते वो एकदम से रुक गया और खलीफा के बारे में सोचने लगा कि वो अदालतों को कभी बंद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत भारी नुकसान होगा। वाह क्या बात है, अब मेरा काम हमेशा जारी रहेगा। गाने के बाद वो खाने बैठ गया। उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर शराब की बोतल पी। उसी दौरान वो तीनों मुसाफिर आकर बैठ गए। उन्हें देखकर कासिम का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो उन्हें बुरा भला कहता रहा और वो भी खामोशी के साथ बैठे देखते रहे। पहले कासिम ने सोचा हुआ था कि आज वो अपने काम के बारे में उस मुसाफिर को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन फिर साथ ही सोचा कि खलीफा तो अदालत को कभी बंद नहीं कर सकता, क्यों ना मैं उसे ये काम भी बता दूं। जब खलीफा ने उसके नए काम के बारे में उससे पूछा तो कासिम अकड़कर कहने लगा, अरे अब तो मैं वकील का भेष बदल कर काजी की अदालत में जाने लगा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि खलीफा कैसे अदालतें बंद करने का हुक्म देता है। कासिम की बात सुनकर खलीफा ने कुछ नहीं कहा। तीनों ने वहीं पर रात बसर की और फिर सुबह होने से पहले तीनों महल पहुँच गए। सुबह होते ही खलीफा ने अपने महल में काजी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास जितने भी नुमाइंदे हैं उन सब के पास मेरी लिखी हुई तहरीर है जिस पर शाही मोहर लगी हुई है, लेकिन कुछ बदमाश लोग ऐसे हैं जो वकील का भेष बदलकर तुम्हारे नुमाइंदों में शामिल हो गए हैं। आज ही उन बदमाशों को ढूंढ कर उन्हें निकाल बाहर करो। खलीफा की बात सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। ऐसा हुक्म तो खलीफा ने कभी नहीं दिया था, आखिर क्या राज है? ये सोचता हुआ काजी शहर के उस मदरसे में पहुंचा जहां शहर के सारे नुमाइंदे इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मशवरे करते थे और फिर अपनी अपनी अदालतों की तरफ रवाना हो जाते थे। थोड़ी ही देर में खलीफा के सिपाहियों ने तमाम के तमाम वकीलों को घेर लिया जिनके हाथों में डंडे थे। काजी एक एक का इजाजतनामा गौर से देखता और फिर उसे वापस कर देता और फिर उसे वहां से भेज देता। खलीफा ना सिर्फ नुमाइंदों के नाम देख रहा था बल्कि उसके पूरे खानदान के बारे में जानकारी ले रहा था, क्योंकि खलीफा के पास सारी की सारी जानकारी लिखी हुई थी। ये सब देखकर कासिम घबरा गया और वो समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है और अब काजी उसे बहुत सख्त सजा देगा। जल्द ही सिपाहियों ने कासिम को पकड़ लिया। काजी ने उसे खूब बुरा भला कहा और सिपाहियों से उसे मार पड़वाई और फिर हमेशा के लिए कासिम को उस कमरे से निकाल दिया जहां पर हर रोज वकील इकट्ठे होते थे और एक दूसरे से मशवरे करते थे। अब कासिम के जहन में बार बार उस मुसाफिर आदमी का चेहरा घूम रहा था जो हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर सुनाता था। इसी फिक्र में सोचता हुआ और परेशानी में डूबा हुआ कासिम अपने घर पहुंचा। अब वो जल्द से जल्द बगदाद शहर से निकल जाना चाहता था। वो गौर से अपने कमरे की तरफ देखने लगा। कमरे में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे वो अपने साथ ले जाता। फिर वो कमरे से बाहर निकलने वाला था कि उसकी नज़र एक म्यान पर पड़ी। उस म्यान में कभी उसकी तलवार रहा करती थी। उसे अब बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसकी तलवार कहाँ गई। और फिर कासिम की नज़र एक खुट्टी पर लटकते हुए एक साफे पर पड़ी। कासिम ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे लकड़ी की एक तलवार बनाई। कासिम ने तलवार का दस्ता इतनी खूबसूरती और नायाबी से बनाया कि वो असली तलवार की तरह नजर आ रहा था। उसने खुट्टी से लटकता हुआ चमड़े का पट्टा उतारा और अपने गले में लटका लिया। म्यान में लकड़ी की तलवार रखी और सर के ऊपर साफा अच्छे तरीके से बांध लिया। हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया, उसके ऊपर तेल लगाकर उसे खूब चमकाया और फिर बगदाद शहर की तरफ रवाना हो गया। कासिम आज कोई दरोगा नजर आ रहा था। वो जल्द से जल्द बगदाद पहुंच जाना चाहता था क्योंकि उसे 5 दिरहम की फिक्र थी। वो जिस जगह पर रहता था वो बगदाद से थोड़ा बाहर था।
वो अपने ख्यालों में इस कदर गर्क था कि उसे इस बात का पता नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच चुका है। अचानक उसे कोई शोर सुनाई दिया। अब जो उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो बगदाद के एक चौराहे पर खड़ा है जहाँ उसे भीड़ नजर आ रही है। भीड़ के करीब जाकर उसने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे की दाढ़ी और लिबास नोच रहे थे। वो दोनों आदमी बहुत जख्मी हालत में थे और किसी की हिम्मत ना थी कि कोई उन्हें छुड़ा देता। लेकिन कासिम ने उनके करीब पहुंचकर दोनों को मारने के लिए अपने हाथ में लिया हुआ डंडा जैसे ही उठाया तो वो दोनों आदमी लड़ना झगड़ना छोड़कर खड़े हो गए। हर तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी बोला, बहुत बहुत शुक्रिया ए दरोगा साहब, आपने यहाँ पहुंचकर इस झगड़े को रोक दिया। मेहरबानी फरमाकर मेरी तरफ से ये 5 दिरहम का इनाम कबूल कीजिए और इन दोनों बदमाशों को काजी की अदालत में पेश कीजिए ताकि ये अपनी गलती की सज़ा पा सकें। यह सुनकर कासिम ने दिल में सोचा, अरे वाह, ये लोग तो मुझे दरोगा समझ रहे हैं। अब तो रोज़ाना मुझे किसी न किसी बहाने से 5 दिरहम मिल जाया करेंगे और अब की बार मैंने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं हो सकता। कासिम दोनों गुंडों को पकड़कर ले गया और महल के बाहर खड़े हुए दरोगा के हवाले उन दोनों को कर दिया। जो काजी का खास दरोगा था, उसके साथ और भी दरोगा मौजूद थे। वो सब कासिम को हैरान होकर देख रहे थे कि कासिम को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन कासिम का अंदाज ऐसा रौबदार था कि वो सब उसे देखकर हैरान रह गए और वो सब उसे कोई खास दरोगा समझ बैठे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि ये खलीफा का कोई अहम दरोगा होगा जिसे खलीफा ने किसी अहम काम के लिए इसे रखा होगा। वो सब मुत्तमीन हो गए। दरोगा खास को भी कासिम पर शक नहीं हुआ। कासिम हंसता मुस्कुराता रोज की तरह सामान खरीदकर अपने मकान में दाखिल हो गया। कासिम हर रोज की तरह अपने काम में मसरूफ हो गया और उन तीनों मुसाफिरों का इंतजार करने लगा। इधर खलीफा ने भी अपने वजीरों के साथ वहां जाने की तैयारी की। फिर खलीफा अपने वजीर से कहने लगा, अब तो वो लुहार अपने घर में बैठा रो रहा होगा। जाफिर और हबशी कहने लगे, अब हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद वो बहुत गुस्से में होगा और बुरे तरीके से हमारे साथ पेश आएगा। लेकिन खलीफा ने कहा कि आज हम जरूर जाएंगे और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने और मुर्ग भुना हुआ ले जाएंगे। मैं उसे भूख से रोता बिलखता और अपने कदमों की तरफ आते हुए देखना चाहता हूँ। वो तीनों अपने साथ उम्दा किस्म के खाने और भुना हुआ मुर्ग लेकर महल के दरवाजे से निकल पड़े। अभी खलीफा और उसके साथी कासिम के मकान के करीब पहुँचे ही थे कि उन्हें फिर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। कासिम अपनी सुरीली आवाज़ में गा रहा था, मेहनत कश इंसान हूँ मैं, कैसे खुशियाँ रूठेंगी मुझसे। मैं चाहूँ तो पत्थर से भी नूर की किरणें फूटेंगी। जैसे भी हालात हों हरदम खुशी के गीत में गाता हूँ। तारों को मैं छेड़ के अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखा। जाफर कहने लगा, हैरत की बात है, वो हर रोज की तरह खुशी से गा रहा है। ये सुनकर खलीफा कहने लगा, हमें मालूम करना होगा कि आज उसने किस तरह से 5 दिरहम हासिल किए। ये कहकर वो जल्दी से आगे बढ़े। जल्द ही वो कासिम के मकान के दरवाजे के करीब पहुंच गए और दस्तक दी। कासिम ने खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाला। उसके सर पर अभी तक दारोगा का साफा बंधा हुआ था। वो कहने लगा, आओ आओ, आज तो मैं तुम्हारी अच्छी खासी मेहमानदारी करूंगा। खलीफा ने कहा कि आज आखिरी रात हम आपके घर पर रुकेंगे, कल हम बगदाद छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए आज रात का खाना हमारी तरफ से होगा क्योंकि हम आपके मेहमान हैं। कासिम कहने लगा, तो देर किस बात की, जल्दी से अंदर आ जाओ। आज मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम कहो। और फिर कासिम ने खलीफा से मुखातिब होकर कहा, ए काली जुबान वाले, कल के लिए तुम क्या पेशगोई करोगे, तू वो भी करके देख ले। अब मेरा काम कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि मैं खलीफा के खास दरोगा के अंदर शामिल हो चुका हूँ। इतना कहकर कासिम ने एक जोरदार कहकहा लगाया और खलीफा ये सुनकर हैरान रह गए। कासिम के साथ खाना खाने के बाद खलीफा ने बड़ी बेचैनी के साथ रात गुजारी और फिर सुबह महल में वापस जाकर खलीफा ने तमाम दरोगा से ये मालूम कर लिया कि कासिम ने किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वो उनके अंदर दाखिल हो चुका है। और फिर खलीफा ने कासिम को सज़ा देने के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया। दिन चढ़ते ही खलीफा ने अपने दरोगा को हुक्म भेजा कि अपने दारोगा में से 4 दारोगा हमारे पास भेजो। और फिर कासिम का हुलिया बयान करते हुए बताया कि वो नया दारोगा जो है उसे ज़रूर भेजना। जब कासिम को इस बात का पता चला कि खलीफा ने ख़ास तौर पर उसे बुलाया है तो कासिम सोच में पड़ गया कि ये क्या आज भी मेरी शामत आएगी या मुझे लोहार का दोबारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि क्या खलीफा मुझे माफ़ कर देगा या मुझे कत्ल करवा देगा। कासिम के जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और वो परेशान हो रहा था। कभी कभी ये सोचकर उसे तसल्ली होती कि शायद मेरा रुतबा बढ़ाने के लिए या इनाम देने के लिए मुझे याद किया हो। फिर वो चारों दरोगा महल में पहुँचे और महल में पहुंचकर तो उससे भी बुरा हुआ जो कासिम सोच रहा था। और वो चारों खलीफा हारून रशीद के महल में खलीफा हारून रशीद के सामने खड़े थे और खलीफा हारून रशीद अपने चेहरे पर रुमाल डाले हुए बैठे थे। खलीफा ने उन चारों को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम चारों को कोई ऐसा काम करना होगा जिससे ये जाहिर हो सके
कि तुम लोग अपने कामों में बहुत माहिर हो। अगर तुम कामयाब हो गए तो ना सिर्फ तुम्हें इनाम दूंगा बल्कि तुम्हारा ओहदा भी बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी गर्दनें उड़वा दूंगा। ये सुनकर वो चारों दारोगा एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगे। फिर खलीफा ने इशारा किया। खलीफा के इशारे पर 4 कैदियों को सामने लाया गया। ये चारों कातिल थे और अदालत की तरफ से इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। खलीफा दारोगा से मुखातिब होकर बोला कि तुम चारों ने इन चारों की गर्दनें उड़ानी हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ज़्यादा अपने काम में माहिर है। यह सुनकर कासिम सोचने लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है और मैं कैसे इस लकड़ी की तलवार से किसी का सिर काटूंगा। फिर खलीफा ने कासिम से पहले उन तीनों दारोगा का हुक्म दिया कि वो तीनों कैदियों का सर काटें। उन्होंने अपनी तेज तलवार के साथ एक ही वार में तीनों कातिलों के सर उड़ा दिए और फिर खलीफा के सिपाही फौरन उनकी लाशें उठाकर वहां से ले गए। अब सामने एक कातिल खड़ा था और दूसरी तरफ सामने एक लकड़ी की तलवार अपने म्यान में लटकाए हुए कासिम। खलीफा, मसरूर और जाफिर अपने मन ही मन में बहुत हंस रहे थे क्योंकि कासिम का बहुत बुरा हाल था। फिर खलीफा ने कासिम को मुखातिब करते हुए कहा, चलो 3 दारोगा तो अपना काम करके इनाम भी पा चुके और अपने ओहदे भी बढ़वा चुके। अब तुम भी अपना ओहदा बढ़ाने के लिए और इनाम पाने के लिए अपना काम करो। कासिम आहिस्ता से आगे बढ़ा और खलीफा के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और अदब के साथ कहने लगा, रहम हजूर, मेरे पास तो मेरे दादा परदादा की एक तिलस्मी तलवार है जो मेरे बाप के परदादा ने मेरे परदादा को दी थी। मेरे दादा ने मेरे बाप को और मेरे बाप ने मुझे ये तिलस्मी तलवार दी है। ये तलवार काजी के फैसले से ज्यादा इंसाफ करती है। अगर कोई आदमी बेगुनाह हो तो ये तलवार उस आदमी के गर्दन पर पड़ते ही लकड़ी की बन जाती है। मुजरिम अगर वाकई मुजरिम है तो ये तलवार उसका सर उड़ा देती है। खलीफा ने यह सुना तो खलीफा कहने लगा, अच्छा ऐसी जादुई तलवार है तुम्हारी तो इसका करिश्मा हमें भी दिखाओ। फिर कासिम जल्दी से उठा और उस मुजरिम के करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने खलीफा की नज़र बचाकर जल्दी से म्यान से तलवार निकाली और मुजरिम के गर्दन पर मारी और फिर साथ ही जोर से चिल्लाया, हजूर, ये आदमी तो बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए मेरी तलवार लकड़ी की बन गई है। यह सुनकर खलीफा हारून रशीद, मसरूर और जाफर हंस हंसकर पागल हो गए और खलीफा तो हंस हंसकर लौट गए। जब वो हंस हंसकर बेहाल हो गए तो तीनों ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया और कहने लगे, कासिम, वाकई ही तुम हिम्मत ना हारने वाले इंसान हो। तुम वाकई ही बहुत ज़हीन और हर बड़ी से बड़ी मुश्किल में मुस्कुराने वाले और अपनी जहानत से रोजी कमाने में उस्ताद हो। मैं तुम्हें एक बड़े दरोगा का ओहदा देता हूँ और एक इलाके की जिम्मेदारी देता हूँ। खलीफा के साथ ही मसरूर और जाफर भी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कासिम भी खूब हंसा और फिर अपनी गुस्ताखी की माफ़ी चाही। खलीफा ने उसे माफ़ कर दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।